مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا. یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہے اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں, 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہے, تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا, جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. دل کے کانوں سے سننا, یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی دلانیاں نہیں, معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ زبان کیا تھی, کنجی تھی, وہ منہ کیا تھا, اللہ اکبر. وہ دہنے مبارکہ کی شان یہ تھی, میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے, اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے, جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے. ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن, اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا, بلکہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا, بڑے سے بڑا قوت والا, بڑے سے بڑا طاقت والا. تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا, اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اونتی لٹکی ہے, ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے, جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی, کھلے سر نکلتی تھی, ان کو جہنم میں بالوں سے بال کر لٹکایا گیا, ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولا گیا. اب بتاؤ اللہ اکبر, گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والی ہو, مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے, زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں, نہ مال آئے گا, نہ اولاد آئے گی, نہ بھائی بہن آئیں گے, نہ شوہر آئیں گے. کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے, دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے پردے کے لیے ہے. سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو. سن لو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم, کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے. اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو, اپنے آپ کو بدلو.
बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है। दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जान रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाए। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाहु अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह न चलाना, उनका दिल न दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दामन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की। और अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाहु अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबिया की जिंदगी पढ़ो। अल्लाहु अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाहु अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें, अल्लाहु अकबर, लफ्ज़े तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहां वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाहु अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अज़ाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात
हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक ये बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कलीजो, सुना आपने जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों की ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया की चंद दिनों का गुलगप्पारा, लेकिन याद रखना ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हरामकारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं जिसने मुशाहिदा किया, और रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो, बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, तकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है, और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानत सीरियलों पर, लानत गंदी पिक्चरों पर इसने कहा ला करके खड़ा किया। शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूँ यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर। सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती है, और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आबरू से खेल लेते हैं। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक मर्तबा मिलती है, इस्मत एक मर्तबा मिलती है, हया एक का ज़ेवर एक मर्तबा मिलता है, और ये दुनिया में भी पहली और आखिरी बार आए हो। ऐ कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं अपनी जवान बच्चियों से मुखातब हूँ और हिफ्ज़ माँ तकद्दुम के तहत, वैक्सीन के तहत मैं आपको ये डोज देना चाह रहा हूँ। यकीनन आप ऐसी नहीं हो, आप बहुत मुकद्दस हो, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, अगर कोई निकाह का झांसा देकर, अगर कोई मोबाइल ज़ेवरात और लिबास का झांसा देकर तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहे तो गुर्बत में, फाका कशी में मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। और याद रखना, अगर कोई जालिम शादी और निकाह का जो है वो झांसा देकर तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश करे तो याद रखो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलेमा पढ़ती हो, तुम कासिमे नेमत का कलमा पढ़ती हो। वो रसूल जो पत्थरों की किस्मत बदल सकते हैं, वो रसूल हमारे
हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए अपने नबी का दामन पकड़ी रहो, अपने नबी पे एतमाद करो, अपने खुदा पे एतमाद करो। लोग कहते हैं फलां की किस्मत में पत्थर पड़ गए, मैंने कहा किस्मत में पत्थर पड़ जाए तो आदमी नाकाम होता है, मेरा नबी तो पत्थरों की भी किस्मत बदल देते हैं। अल्लाह अकबर। जो को जन्नत की बशारत दे दे ये वो मेरा नबी है। जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे का शऊर अता कर दे वो मेरा नबी है। जिनको पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ के काबिल उन्वान बन जाए वो मेरा नबी है। मेरे इमाम कहते हैं उन पर सलाम जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहज्जुद शजर की है। मेरा नबी वो नबी है। मुझे बताओ मकाम इब्राहिम वाला पत्थर आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर। जिन पत्थरों ने नबी का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लिया आज वो पत्थर मिंबर पे रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में रखे जा रहे हैं। अल्लाह वाले अपने सर पे उठा के फिर रहे हैं। मरने वाले वसीयत करके मरते हैं कि मेरी कब्र के सीने पे रखना। ये कौन है? मेरा नबी है जिसने पत्थरों की किस्मत संवार दिया। वो हमारी न संवारेंगे, उनसे वफा करके तो देखो। इसलिए रिश्ते आने में ताखीर हो घबराना नहीं, उम्र बढ़ जाए घबराना नहीं। मेरी कौम की बेटियों, गौसे पाक की अम्मी जान को तो किस उम्र में शादी हुई? गौस पाक की अम्मी जान 60 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते उनका निकाह हुआ। यहाँ तो 30 साल की उम्र होती है तो माँ बाप भी घबरा रहे हैं, बेटी भी घबरा रही है, मोहल्ले वाले ताना दे रहे हैं। याद रखना जो चीज कीमती होती है वो देर से मिलती, इसलिए देर से रिश्ते आने पर या देर से शादी होने पर कोई गम करने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो गया अल्लाह का करम है, ताखीर होगी अल्लाह के यहाँ काम का एक वक्त है। जब भी वक्त आ जाता है ताखीर नहीं होती। इसलिए कौम की बेटियां किसी जालिम का हाथ पकड़ने की कोशिश न करें। और आजकल तो साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी आबरू से खेल करके तुम्हें हमेशा के लिए रोता बिलखता सिसकता छोड़ दे। ऐसे वक्त में आपको अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी है। मेरी बहनों, अगर कोई दयानतदारी के साथ किसी से इश्क करे, सच्चा इश्क करे, इस्लाम ऐसे इश्क की इजाजत नहीं देता, उसको नाजायज करार देता है। तो जो इश्क साजिश के तौर पे किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कौम को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलखता छोड़ दिया जाए, क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं, उस वाकये को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फुला की बीवी है ना, फुलानी है, इसने भाग के शादी। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना,
اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے. آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں, فیس بک بھی چلائیں, یوٹیوب بھی چلائیں, اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے. مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر, تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا, اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں, دیکھو اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے. آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا, آج اس تناظر میں سن لیں. اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے. تو میری بہنوں آئیے سن لو, اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو, اچھا رشتہ آئے گا. دلیل آپ نے سنا ہوگا, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے, امی امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے, بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب, وہ کہاں دیکھ رہا ہے. پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے, امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تقویٰ دیکھو, پرہیزگاری دیکھو, خدا کا کرنا. اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے. جب یہ کان میں آواز ٹکرائی, سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینے منورہ میں, اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے, امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا. آج کیا حال ہے, امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا, معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے, اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا. دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا, اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا, اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا. توجہ کریں, کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی. اللہ اکبر, سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا. بیٹوں سے کہا تم میں سے نکاح کرے گا. ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا, پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی, بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. فاروق اعظم کی بہو بنی, اس سے بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ. دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت. اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو, تعویذ سے بڑھ کر ہے, جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے, اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ, قادریہ, برکاتیہ کہ شیخ طریقت بھی ہیں. انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں, حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے, داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقویٰ, پرہیزگاری پیدا فرمائے, ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میری ماں, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ نصیب چمکے گا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے.